السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول للیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 30ویں ایپیسوڈ ہے اور یہ میرے چینل کی اب تک کی سب سے لانگ ناول ہے۔ اوبویسلی میں نے اس سے بھی لانگ ناول پڑھے اور سنے ہیں، لیکن اپنے چینل پر میں نے اتنا لانگ ناول اب تک نہیں پڑھا۔ یہ سب سے لانگ ہے اب تک کے، اور خود کے لیے پڑھنا جتنا ہی مزیدار ہے اتنا ہی مشکل ہے اس کو پڑھ کر ریکارڈ کر کر ایڈٹ کر کر اپلوڈ کرنا۔ تو بس آپ دیکھیں میری محنت، اور میری محنت کو سراہنے کے لیے، مجھے انعام دینے کے لیے جلدی جلدی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور میرا بہت بڑا تھینک یو ہر اس شخص کے لیے جو مجھے کامنٹس کر کے میری تعریف کرتے ہیں، یا میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ سبھی کو بہت بہت تھینک یو۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر سبسکرائبرز اتنے زیادہ نہیں ہیں اور بہت کم لوگ ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ مجھے کامنٹس کرتے ہیں، مجھے بار بار یاد کرتے ہیں، وہ میرے دل کے بھی بہت قریب ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں کا تھینک یو۔ تو آپ سبھی لوگوں کو تھینک یو ویری مچ۔ آپ سبھی لوگ میرے لیے بہت اسپیشل ہو۔ اور میں نے بہت باتیں کر لی، جلدی جلدی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کو بور کر رہی ہوں۔ اوکے تو ٹھیک ہے، جلدی سے ناول کنٹینیو کرتے ہیں۔ محتربہ تو گویا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ باغ میں بیٹھی ہوئی دیگر خواتین میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ وہ اسی طرف سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف دوڑ گئی۔ رئیسہ بیگم نے اماں جی کا بازو تھام رکھا تھا۔ نیلوں میں گویا پنکھے لگے ہوئے تھے۔ اماں جی بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ ارے یہ تیمور بڑا نشانے باز بنتا ہے، کہیں پھاٹک کی طرف نہ چلا گیا ہو۔ مار کون سی فوج آ گئی ہے، اللہ رحم کرے۔ اماں جی کو یکدم تیمور علی خان کا دھیان آیا۔ اب اتنے بھی احمق نہیں ہیں تیمور اماں جی، کیا ہوائی پستول چلائیں گے؟ کون سے ہر دم اپنے ساتھ ہتھیار لیے پھرتے ہیں؟ نازنین نے حواس پر قابو پا کر ساس کو تسلی دی۔ ارے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں دیکھتا۔ اماں جی کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ آپ اندر تو چلے، تسنیم جھلائی۔ دوسری طرف تیمور علی خان اندر سے گن لے کر واپس بھی آ چکے تھے اور تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھے تھے۔ چوکیدار اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا، جبکہ اس کے بائیں بازو سے گاڑھا گاڑھا سرخ خون دور سے ہی بہتا نظر آ رہا تھا۔ خان آپ اندر چلو، ہم نپٹ لے گا، صرف 2 ہیں۔ چوکیدار نے اذیت پر قابو پاتے ہوئے تیمور علی خان کو مخاطب کیا۔ تمہارا بازو زخمی ہے، تم اندر جاؤ، ہم دیکھتے ہیں۔ تیمور علی خان کا اندازہ قطعاً تھا۔ اسی دم ایک گولی شعلے کی صورت ان کی طرف آئی۔ صرف ایک لمحے کی بات تھی، اگر تیمور تیزی سے ایک طرف نہ ہو گئے ہوتے تو کن پٹی پھاڑتے نکل جاتی۔ خان اللہ کا واسطہ ہے، آپ اندر جاؤ، بڑا خان ہم کو گولی مار دے گا اگر آپ کو کچھ ہو گیا۔ چوکیدار نے منت کی۔ ویسے کچھ نہیں ہوگا، مگر اس بحث میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تیمور علی خان چڑھ کر گویا ہوئے۔ ہم ڈیوٹی پر ہے خان۔ چوکیدار کو حملہ بھاروں سے زیادہ بڑے خان کا خوف تھا۔ اسی دم بابا صاحب اپنی نئی گن کے ساتھ باہر آتے نظر آئے، ساتھ ہی باہر سے فائرنگ پھر شروع ہو گئی۔ تیمور ہٹو ادھر سے، بابا صاحب کی گرجدار آواز سنائی دی۔ کاکا جان خون؟ گلو گلابی فراک پہنے، فرش پر گیند مارتی اچھلتی کودتی برآمدے میں آئی تھی۔ چوکیدار کے بازو سے بہتا خون دیکھ کر ایک دم ڈر کر چیخی۔ ایک لمحے کو تو تیمور علی خان کے تمام اعصابی قوت ایک دم ہوا ہو گئی۔ ایک طرف بابا صاحب کا حکم، دوسری طرف زخمی چوکیدار، اور پھر گلو کی چیخ۔ بابا صاحب آپ پلیز گلو کو لے کر اندر جائیں۔ اس وقت سب سے پریشان کن مرحلہ بچی کی وجہ سے آیا تھا، اور بس اتنی سی دیر میں چوکیدار ایک دیو کی گرفت میں آ چکا تھا۔ ٹھک گولی چلی تھی اور گن تیمور علی خان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ نشانے پر تیمور علی خان نہیں بلکہ ان کی گن تھی، اور مقصد انہیں نہتہ کرنا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ سنبھلتے 2 فولادی بازو انہیں جکڑ چکے تھے۔ چوکیدار کا اندازہ غلط تھا، وہ 2 نہیں 4 تھے۔ 2 نے پھاٹک پر مورچہ سنبھال رکھا تھا اور 2 تیمور علی خان اور چوکیدار کو گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ بابا صاحب نے گلو کو اندر دھکیلا تھا۔ بس اتنی مہلت حملہ واروں کے لیے کافی تھی۔ گولی چلانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا خان، چھوٹا خان ہمارے نشانے پر ہے، ادھر تم گولی چلاؤ، ادھر ہم چلائے گا۔ پھاٹک پر کھڑے ہوئے دیو قامت انسان نما نے دھمکی دی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ ہماری ادھر کسی سے دشمنی نہیں۔ بابا صاحب کا ایک پاؤں برآمدے کی پہلی سیڑھی پر اور دوسرا دوسری سیڑھی پر تھا۔ انہوں نے فکر مندی سے تیمور علی خان کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہمارے پاس سوال جواب کا ٹائم نہیں ہے خان، لڑکی ہمارے حوالے کرو، اپنا بیٹا زندہ سلامت اندر لے جاؤ۔ ان میں سے ایک نے ترشی سے کہا۔
लड़की? कौन लड़की? इतने ऊंचे शिमले वाले के यहाँ से इतनी गुत्थम खुल्ला लड़की की तलब? एक लम्हे को तो दांतों तले पसीना आ गया। जैतून बानो, शहर बानो का लड़की? फ़ौरन जवाब आया। क्या बक रहे हैं ये लोग तैमूर? बाबा साहब गरजे। इस कदर फितना अंगेज़ है इस लड़की का हुस्न। वो हमारी नौकरानी है, तुम्हें इससे मतलब? वो अपनी उलझन पर काबू पाकर बड़े दबंग अंदाज में गोया हुए। ज़्यादती करता है तुम उसके साथ? उसकी माँ का 4 कोटी है। ओ मालकिन है हमारा, देर नहीं करो खान, मजाक नहीं है तुम्हारे साथ हमारा। 2 मिनट में लड़की बाहर लाओ वरना खान को गोली लगेगी। फाटक पर खड़ा बदहेबत देव घुर्राया। क्या बक रहे हैं ये लोग तैमूर? बाबा साहब गज़बनाक हुए। जैतून बानो को लेने आए हैं। तैमूर अली खान ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। मगर क्यों? उनकी मजाल कैसे हुई कि वो हवेली की किसी लड़की का नाम अपनी ज़ुबान पर लाएं, खा वो हमारी औलाद हो या नौकरानी? दोनों हवेली की इज्जत है। बाबा साहब मुँह से झाग उड़ाने लगे। उनका बस नहीं चल रहा था कि फायर कर दें। देर नहीं करो खान, टाइम नहीं है, एक गुंडे ने खशूनत भरे अंदाज में कहा। बाबा साहब नहीं, आप उसे बाहर नहीं लाएंगे। तैमूर अली खान बला के नीडर साबित हो रहे थे। तो फिर ठीक है, अब 48 घंटे देता है। खान को साथ ले जा रहा है, लड़की को इसके घर पहुंचा दो, अब वहीं से ले जाएगा। अभी खून खराबा करने का आर्डर नहीं है। अगर 2 दिन में लड़की नहीं पहुंचा तो हम बड़ी इज्जत से खान का लाश इधर छोड़ जाएंगे। अब कुछ बोलने का नहीं, चलो खान। उनमें से एक ने अपनी बात मुकम्मल करके तैमूर अली खान को आगे धकेला। उतरबा हॉल की खिड़की से नाक लगाए बाहर की कार्रवाई बगौर देख रही थी और थर थर काँप रही थी। गुमान यही गालिब था कि बस अब बाबा साहब बुलवाने ही वाले हैं। मगर बाहर का बदलता मंजर देखकर जाने क्या हुआ, बाहर की जानिब सर पर दौड़ी। रुको रुको, ठहरो, खान को छोड़ो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। बाबा साहब के लिए यह अचानक अफ्तार थी। वो संभलने भी नहीं पाए थे कि वो फाटक पर पहुँच गई। इससे कबल वो कोई अगला कदम उठाते, वो 2 घंटों की गिरफ्त में थी। जब तक जीप स्टार्ट नहीं हो गई उन्होंने तैमूर अली खान को नहीं छोड़ा। बाबा साहब गन उठाने के बावजूद कुछ न कर सके। जीप धीरे से आगे बढ़ गई। दोनों गुंडे तैमूर अली खान को छोड़कर चलती जीप में कूद गए। तैमूर अली खान होठ काटते हुए धूल उड़ाती हुई जीप को देखने लगे, फिर शिकस्ता कदमों से बाग की सिम बढ़े जो चौकीदार को साथ लिए उसकी कोठरी की तरफ जा रहे थे। बेचारे चौकीदार का खून बहुत बह गया था। बाबा जान को कितनी हैरत और दिलचस्पी थी इस वाक़ये से, मगर चौकीदार की जान बचाने के अमल से ज़्यादा अहम तो अब कुछ भी नहीं था। शिकार खेलने वाले इस तरह के मामलात बहुत आसानी से डील कर लेते हैं, इसलिए दोनों बाप बेटे वसावस खदशात का शिकार तो नहीं थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें क्या करना है, किस तरह बहता खून रोकना है। खान, उस बेवकूफ़ का बच्ची ने सारा मेहनत ही बेकार कर दिया। चौकीदार ने तकलीफ़ पर काबू पाते हुए जैसे बहुत दिल महसूस कर कहा था। वो दोनों खामोश रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ख़वातीन अंदर आयात कुरानी का विर्द कर रही थी। या अल्लाह, कैसी ना कहानी है, पता तो कराओ कि तैमूर और तुम्हारे बाबा साहब कहाँ हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बताओ, कमाद की फसल कट रही है, हवेली के सारे नौकर आजकल ज़मीनों पर होते हैं। घर पर तो सिर्फ तैमूर और तुम्हारे बाबा साहब ही थे। ज़हीर और बसीर तो शहर की तरफ गए हुए हैं। अम्मा जी के दिल में तो जैसे पंखे लगे हुए थे। यावर अली खान थोड़ी देर कबल ही हवेली से रवाना हुए थे। तो आप मर्दाने में खाना किसके लिए लगाने को कह रही थी? नाज़नीन ने पूछा। तुम्हारे बाबा साहब तो वक्त पर खाते हैं। ज़हीर और बसीर वे कह कर गए कि वो खाने के वक्त तक वापस आ जाएंगे। फिर तैमूर भी सराय जा रहा था, इसलिए कह रही थी। उसी दम मामा बिल्ली कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा सुता हुआ था। अम्मा जी, बाबा साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं, उसने पैगाम दिया। तैमूर कहाँ है? उन्होंने पैगाम नज़रअंदाज करके पहली फुर्सत में बेटे की बाबत दरियाफ़्त किया। खान भी वहीं हैं, मामा ने जवाब दिया। अम्मा जी आप जाएं ना, पता नहीं बाबा साहब ने आपको क्यों बुलाया है। हमले के फ़ौरन बाद अम्मा जी की तलबी बड़ी मायने खेज़ थी। फितरी तौर पर सभी को तजस्सुस था कि अब से कुछ देर पेशतर होने वाले वाक़ये का भेद क्या है। हैरियत तो है ना मामा? अम्मा की छठी हिस्स जैसे चार्ज हो गई। ये 16 आने अभी तक नहीं आई, पिटवारन के हाथ से? उन्होंने मामा के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए पूछा। नहीं, अभी नहीं आई, मामा ने उसी साहब का अंदाज में जवाब दिया। बताओ, अंधेरा हो गया, उसकी बातें ख़त्म नहीं होती। मामा, तुझे पता चला कि गोलियां कौन चला रहा था? पता नहीं अम्मा जी, मामा का जवाब मसलहत आमेज़ था।
तौबा, मेरी तो जान निकल गई थी। सीधी सी बात है, मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र मार रही थी कि मारे जोश के बाहर ना निकल गया हो। शुक्र है मेरे रब का, मेरा बच्चा महफूज है। या अल्लाह, कुल की खैर हो। वो दुआएं मांगते हुए बाबा साहब के कमरे में दाखिल हुई। बाबा साहब अपने बिस्तर पर और तैमूर अली खान सोफ़े पर बैठे हुए थे। आओ रईसा की माँ। बाबा साहब गाँव तकिए से लगकर बैठ गए। खैरियत तो है? अम्मा जी ने पुरतशवीश नज़रों से बारी बारी बाप बेटे की शक्ल देखी। ये गोलियां कौन चला रहा था? मेरे तो हाथ पैर अभी तक ठंडे पड़े हैं। अम्मा जी तैमूर के पहलू में बैठ गई। कमरे में एक महसूस किया जाने वाला मायने खेज सन्नाटा तारी था। फिज़ा में एक अजीब सा गैर मामूलीपन छाया हुआ था। ये जैतून बानो किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? बाबा साहब ने वो सवाल किया जो अम्मा जी के दिमाग में दूर दूर कहीं नहीं हो सकता था। वो बुरी तरह चौंक गई। खैरियत? 16 आने की भांजी है, उसी के गांव से ताल्लुक़ रखती है। उनके दिल में अजीब धकड़ पकड़ होने लगी। 16 आने की दर है, उसे बुलवाएं। बाबा साहब का लहजा कतन बेतासिर था। आप मुझसे पूछे जो पूछना है, मुझे सब पता है। वो बेहद परेशान हो गई। क्या पता है? क्या आपको ये भी पता है कि उसका किसी शहर बानो नामी औरत से कोई ताल्लुक़ है? उनका अंदाज़ कदरे बरहम था। जी पता है, वो मुजरमों के से अंदाज में बोली। तैमूर अली खान ने चौंक कर माँ की शक्ल देखी। खान दिलावर अली खान भी उलझे। माँ लगती है वो जैतून बानो की। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में गोया हुई। तो क्या माएँ इस तरह बेटियों को गुंडों से उठवाती हैं? उनके अंदाज में महसूस की जाने वाली नागवारी थी। हैं? अम्मा जी दहल कर रह गई। कहाँ है जैतून बानो? वो गोलियाँ इसीलिए चल रही थी अम्मा जी। तैमूर ने बहुत थकी थकी आवाज़ में उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की। क्या मतलब? उनका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा। ले गए वो उसे? तैमूर अली खान ने मुताला किया। अरे मेरे अल्लाह! अम्मा जी ने सर पर दौड़ते दिल को पकड़ने की कोशिश की। आप लोगों के सामने? उन्होंने ताज्जुब से शौहर की सूरत देखी। यहाँ से उठने के बाद पहले तो सदका बांटिए अपने बेटे की जान का। शुक्र मनाइए ज़िंदा सलामत आपके सामने बैठा है। आप अपने तौर पर बड़े बहादुराना काम अंजाम दीजिए। इंसान को किसी मामले में हाथ डालते वक्त चारों तरफ से इत्मीनान कर लेना चाहिए। आपने हमें अंधेरे में रखकर अच्छा नहीं किया। अगर आपके बेटे को कुछ हो जाता, खुदा न खास्ता। खान दिलावर अली खान के अंदाज से हनूज़ नाराज़गी टपक रही थी। खुदा न खास्ता, वो भी बेआसरा बच्ची है। वो सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए नज़रें झुकाकर आहिस्तगी से गोया हुई। इस हवेली से बाहर लाखों इंसान मसाइल से दो चार हैं। क्या हम पर तमाम लोगों की जिम्मेदारी है? हमें इस बात से उलझन है कि ये वाक़या हमारे यहाँ हुआ ही क्यों। इसकी सरासर जिम्मेदारी आप पर आती है। बाबा साहब को बस दो टोक बात करना होती थी। जब आपने उसे हवेली में रहने की इजाज़त दी तो क्या आप उसके तमाम हालात से बाखबर थी? उन्होंने बीवी के नर्म और परेशान चेहरे पर एक उचटती सी निगाह डाली। पहले तो नहीं थी बाखबर, अलबत्ता बाद में सब कुछ मालूम हो गया था। वो धीरे से गोया हुई। मसलन क्या मालूम हुआ बाद में? खान साहब की मजबूरी थी कि वो इस सादा मिजाज और धीमी औरत के सामने खुलकर नाराज़गी का इजहार भी नहीं कर सकते थे। अम्मा जी ने तैमूर अली खान की सिम देखा। बेटे, तुम बता दो ना अपने बाबा को, वो भोलपन से कह रही थी। लेकिन अम्मा जी, मुझे भी तो सिर्फ इतना पता है कि वो शहर बानो की बेटी है और बस। तैमूर अली खान ने उन्हें बताया तो वो सोच में पड़ गई। जाने दीजिए अब इस किस्से को। वो बदनसीब तो अब अपने अंजाम को पहुंच गई। अब इन बातों से क्या हासिल? हाय, उसकी तो उम्र भी बहुत कम है। उस पर बेअकल है। अल्लाह उसे अमान में रखे। बताओ, आप दोनों के सामने वो उसे ले गए। ऐसी बुज़दिल, पल में रो देने वाली, क्या हाल हो रहा होगा उसका? क्या खाती है वो औरत? कैसा पत्थर दिल है उसका? अम्मा जी की आवाज़ भर आ गई। बताओ, लड़कियों को कितना दुख था, कितना प्यार करने लगी थी सब उससे। कम अज़ कम इस बेहयाई की ज़िंदगी से तो बच जाती। अम्मा जी बहते आंसू पोंछने लगी। तैमूर, जाओ बेटे, तुम अपना काम करो। अब क्या हो सकता है? बाबा साहब ने कहा। तैमूर किसी गहरी सोच से जागे थे। फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल के, आप इधर आओ हमारे पास। बाबा साहब ने अम्मा जी को अपने पास बुलाया। वो आहिस्तगी से चलती हुई आई और बेड के एक कोने पर टिक गईं। यह हद से ज़्यादा रहमदिली जहाँ आपकी बेहतरीन खूबी है, वहाँ आप ही के हक़ में वबाल भी है। नरमदिली अच्छी चीज़ है, लेकिन यूँ भी नहीं होना चाहिए कि इंसान उसूल से ही हट जाए। अगर हमें आप सब कुछ बता देती तो हम कुछ इंतज़ाम तो करते। बस गलती हो गई, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब भी हो सकता है। वो जैसे जुर्म का इकरार कर रही थी। क्या आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए?
उन्होंने मदद तलब नज़रों से शौहर की तरफ देखा। गैरों के साथ मामला होता तो बहुत कुछ किया जा सकता, लेकिन बकौल आपकी ये हरकत तो उसकी अपनी माँ की है। हम ही उल्टा किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। 4 कोठियों की मालिक औरत अपने हाथ पैर चलाना भी जानती होगी। वो जैसे कुछ सोचते हुए बोल रहे थे। अम्मा जी ने चौंक कर खान साहब की शक्ल देखी। 4 कोठियों की मालिक? आपको किसने बताया? वो मुताज्जिब थी। वही जो उसे लेने आए थे, उन्हीं के मुंह से सुना है। इतनी बातें भी हो गई आपसे? उनकी हैरत में इजाफा हो गया। बाबा साहब ने अपनी सीधी सादी बीवी को यकसानी के लिए बगौर देखा। क्या ख़ानदान 16 आने का? अम्मा जी का दिल बड़े ज़ोर से धड़का। अस्तरारी अंदाज में दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। मज़ीद सर चुगलने का मरहला दरपेश था। वो 16 आने की सगी भतीजी नहीं है। उसकी नानी से 16 आने के ख़ानदान का मुँह बोला बहनापा चला आ रहा है। सगों की तरह एक दूसरे के हैं मुद्दतों से, वो धीमे लहजे में बता रही थी। पाकिस्तान बनने से पहले के ताल्लुकात हैं उनकी। क्या ये लड़की उन लोगों से ताल्लुक़ रखती है जहाँ सिर्फ नानियाँ होती हैं, दादियों का कोई अता पता नहीं होता? बाबा साहब ने गहरी निगाह उनके चेहरे पर जमा दी। जैतून के बाप ने उसकी माँ से निकाह किया था। अम्मा जी ने जैतून बानो की साख बहाल करने की कोशिश की। आपके पास अमानत रखा है उसकी माँ का निकाहनामा? बाबा साहब का मूड ऑफ हो गया। उन्हें पता था कि अम्मा जी हर शख्स की बात का एतबार कर लेती हैं। अम्मा जी एक लम्हे को खामोश होकर रह गई। आपको तो तमाम बातों का क्योंकि इल्म नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। अम्मा जी ने हकीकत पसंदाना अंदाज इख्तियार किया। उन्हें क्योंकि इल्म था कि खान साहब आसानी से मुतमईन नहीं होते, इसलिए वो यही कह सकती थी। तो फिर आप हमें बताइए। अगरचे अब इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, मगर इस बहाने आप हमें कुछ वक्त ही दे दें। वो नीम दराज हो गए। औरत को शायद बच्चे ही चाहिए होते हैं, सब कुछ ही भूल जाती है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हुक्का करीब किया और हुक्के की नली मुंह से लगा ली। बच्चे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, बड़े काम होते हैं गृहस्थी के। वो नज़रें झुकाकर गोया हुई। इतने बड़े कुंबे की ज़रा सी बात का ख्याल रखने वाली को कभी अपने मर्द की तनाई का ख्याल नहीं आता। जुमले के इख्तिताम पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट गूंजी। आपके अपने काम धंधे होते, इतने मसरूफ़ रहते हैं कि मुझे तो आपकी तकन के ख्याल से ही बड़ा मलाल होता है। मामा को इसीलिए कहती रहती हूँ कि खाना बड़े खान की मर्ज़ी का बनाया कर। अब बेचारों को घर का खाना ही तो खाना होता है। मुझे एहसास है कि बड़े रुतबे बड़े काम मांगते हैं। माशाअल्लाह बेटे जवान हैं, जागीर के काम उन पर डालिए। आपने भी तो बड़ी छोटी उम्र में ये सब कुछ संभाला था। वो सादगी से कह रही थी और उनकी नेक तमन्नाएं उनके चेहरे पर नूर जगा रही थी। खान साहब का ज़रा सा गुस्सा सारी को हवा हो चुकी थी। आपने ज़माने के 1000 रंग देखे हैं, मगर कोई असर नहीं है। आप तो वैसी की वैसी हो रही सकी माँ। बाबा साहब को उनके सीधेपन की एक एक अदा याद आने लगी। अम्मा जी कदरे सटपट आ गईं। मुझे उस बच्ची का ध्यान आ रहा है। उन्होंने बात बदलने की कोशिश की। हाँ, तो आप बता रही थी उसकी कहानी। बताओ ताकि हमें भी पता चले, अंदाज़ा हो कि कौन कितना चला गया आपको। 16 ने मुझसे झूठ नहीं बोलती। क्या मैं उसे जानती नहीं? 4 दिन का साथ तो नहीं है मेरा उसका क्या लालच है उस बच्ची से? रहने को ठिकाना, रोटी टुकड़ा, पान छालिया सब उसे मिला हुआ है। बात दरअसल ये है, अम्मा जी ने खाला 16 आने की वकील सफाई का रोल अदा करने के फ़ौरन बाद हकीकत बयानी शुरू कर दी। मामा, अम्मा जी कहाँ हैं? तज़नीन ने किचन में आकर पूछा। बड़े खान ने बुलाया था ना, वहीं हैं। मामा का चेहरा सुता हुआ था। क्या तैमूर सराय चले गए? वो जाते जाते फिर पलटी। नहीं, छोटे खान भी अपने कमरे में हैं। मामा ने जवाब दिया। हैं? वैसे तो बड़ी जल्दी हो रही थी। ये मुतरबा भी इतनी देर से नज़र नहीं आई। कुछ पता चला मामा? ये फायरिंग कैसी थी? छोटे खान से पूछ ले बीबी जान। मामा ने पीठ मोड़े मोड़े जवाब दिया। छोटे खान से पूछ ले बीबी जान। मामा ने पीठ मोड़े मोड़े जवाब दिया। तज़नीन ज़हनी तौर पर इतनी मुश्तर थी कि वह मामा के गैर मामूली अंदाज़ पर ध्यान न दे सकी और सोचते हुए अंदाज में तैमूर के कमरे में जाने के लिए जीने की तरफ बढ़ी। कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर सोचा, फिर बहुत आहिस्ता से दस्तक दी। कौन है? तैमूर अली खान के अंदाज में झुल्लाहट थी। तज़नीन। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आप आइए अब्बा। तैमूर बिस्तर पर नीम दराज सर के नीचे हाथों का तकिया बनाए जाने किस ध्यान में थे। बहन को देखकर चौंक कर उठ बैठे। गए नहीं? वो नज़दीकी कुर्सी पर बैठ गई। कहाँ? वो गुमसुम से अंदाज में उनकी तरफ देखने लगे। सिराय। और कहाँ? कहाँ तो तुम पर सफ़र सवार था कि खाना भी नहीं खा रहे थे।
बस वैसे ही मूड नहीं बन रहा अब। वो नज़रें चुरा कर गोया हुए। ये फायरिंग कैसी थी तैमूर? वो उधर सारी ख़वातीन अभी तक सहमी बैठी हैं। वो जाने क्यों खटक गई थी। उस पर से तैमूर का रवानगी मुलतवी करना, फिर गुमसुम सा नज़र आना, उनके बेनाम शौबात को तक़वियत मिल रही थी। एक हादसा हो गया आपा। हैरत है आप अभी तक बेखबर हैं। किसी मुलाजिम ने भी नहीं बताया? वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे। क्या? कैसा हादसा? वो डरकर भाई की सूरत देखने लगी। मुतरबा को उसकी माँ के कारिंदे उठा कर ले गए हैं। उन्होंने गोया धमाका कर दिया। हैं? उसकी माँ के कारिंदे? क्या कह रहे हो? उसकी कोई माँ बाप नहीं है। उन्हें तैमूर के नाकिस मालूमात पर अफसोस हुआ। आपको दरअसल हकीकत हासिल का इल्म नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। उसकी माँ भी है और यकीनन दुनिया के किसी कोने में बाप भी होगा। वो पुरसुकून अंदाज में बहन की मालूमात में इजाफा कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से सुनकर आ रहे हो। खाला 16 आने कभी हम में से किसी के साथ गलत बयान ही नहीं कर सकती। तज़नीन किसी तौर मानने को तैयार न हुई। हो सकता है उन्होंने अम्मा जी को बताया हो और आप सबसे छुपाया हो। अम्मा जी गालिबन इसी किस्म का इंटरव्यू दे रही हैं बाबा साहब के कमरे में। वहाँ से आए तो पूछ लीजिएगा, तैमूर ने पुरजोर अंदाज में कहा। ठीक है, मान लिया, लेकिन उसकी माँ को इस तरह ले जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो अम्मा जी से बात करके ले जाती तो कौन सा अम्मा जी उसे रोक लेती? तज़नीन की उलझन किसी तरह कम न हुई। वो तो सीधे तरीके से ही लेने आई थी, मगर हमने और यावर भाई ने शायद उसके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया था। आप लोग मिले हैं उससे? कब? कहाँ? तज़नीन सर से पाँव तक मुस्तैद हो गई। यहीं हवेली में आई थी वो, तैमूर ने जवाब दिया। तो हमें क्यों नहीं मिलवाया? हम भी तो देखते। वैसे कैसी हैं? तज़नीन के अंदाज में इश्तियाक उमड़ आया। जैसी इस इलाके की औरतें होती हैं। तैमूर अली ख़ान ने बहन से नज़रें चुराई। किस इलाके की? तज़नीन की सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी जिस तरफ तैमूर अली ख़ान इशारा कर रहे थे। आपने तो उसके गीत सुने हैं, कैसी आवाज़ है उसकी? उन्होंने सवाल कर दिया। उफ़, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। मैं तो सुनकर हैरान रह गई। सच? फंक्शन वगैरह में गाए तो लाखों खरे कर ले। वो मुस्कुराई बेसाख्ता। उसकी माँ कर रही है लाखों खरे, तैमूर अली ख़ान ने बेसाख्ता कहा। तज़नीन यकदम सन्नाटे में रह गई। तैमूर? जी, उम्मीद है आप समझ गई होंगी। कुछ समझी हूँ, कुछ नहीं। उसकी नानी तो खाला 16 आने की पुप्पी हैं और खाला तो सर से पाँव तक बेसुर हैं। उस इलाके में खालाएँ तो हो सकती हैं मगर पुप्पियाँ नहीं। वो दर हकीकत उलझ गई थी। लगता है खाला अम्मा जी को सब कुछ बता चुकी हैं। अम्मा जी को सब मालूम है। मज़ीद मामलात के लिए उन्हीं से मिल सकती हैं आप। तैमूर अली ख़ान ने उन्हें उलझन से निकालने की कोशिश की। वो उसे ज़बरदस्ती ख़तरा मोल लेकर गई हैं, जबकि मुतरबा उसके सामने उसके साथ जाने से इनकार कर चुकी है। तैमूर गोया हुआ है। पता नहीं इन औरतों का भरता क्यों नहीं। कितना जी लेगी, कितना खा लेगी। कौन सा ख़ानदान बनाकर बैठी हुई है कि आल औलाद की फ़िक्र में कमा रही है। ये मुतरबा तो बहुत मासूम है, बहुत ही बेवकूफ़ है। बड़ी ज़्यादती होगी उसके साथ तो। तज़नीन को बहुत से मलाल सताने लगे। अगर वो उनका कहा नहीं मानेगी तो और मुसीबत। ये लालची और हरीस कौम, ये लोग तो तशद्दुद भी बुरा करते हैं। ऐसी फूल जैसी नाजुक लड़की, कमबख्त को अभी पूरा होश भी नहीं आया। तैमूर, कुछ हो नहीं सकता। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है गरीब पर। तज़नीन बेहद अफसरदा हो गई। माँ बेटी का मामला ना होता तो बहुत कुछ हो सकता, अब तो मुश्किल है। तैमूर ने मायूस करने में ज़रा देर न लगाई। हाय तैमूर, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब किया भी क्या जा सकता है। वो आम से अंदाज में गोया हुए। तौबा, कितना डरती थी तुमसे। खिदमत गुजार कितनी थी। आधी रात हो या दिन, एक सा अंदाज था काम करने का। चलती हूँ, अम्मा को देखती हूँ, वो तो यूँ भी दिल पर लिए बैठी होंगी। अब उन्हें माँ की फ़िक्र पड़ गई। खाना यहीं भिजवा दूँ? वो दरवाजे के करीब जाकर रुक गई। नहीं, सिर्फ़ एक गिलास दूध भिजवा दें। थैंक्स। वो बेड से उतरकर राइटिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए गोया हुए। तज़नीन बाहर निकल गई। तैमूर राइटिंग टेबल के नज़दीक पहुंचकर चंद सानियों को रुके थे, फिर वापस पलटकर दरीचे में आ खड़े हुए थे। फाटक के नज़दीक इस्तादा मरकज़ी गुलवेज़ की रोशनी में पोर्च तक का मंजर वाज़ेह था। एक लड़की नंगे पांव दौड़ती हुई जीप में बैठ रही थी। बार बार उस मंजर की तकरार से उनका दिमाग सुन्न होने लगा। वो उसका दीवाना वार, निडर बेखौफ अंदाज। वो दरीचे से हट गए। ओहो, बच गए चाचा। गोली ज़रा इधर उधर हो जाती, हो गया था तुम्हारा तो काम।
आरिफ चौकीदार से तहलका खेज रिपोर्ट वसूल कर रहा था। अम छोड़ता नहीं। इधर वो बड़ा खान आ गई। अम ज़रा सा इधर सोची, गुंडा लोग फ़ायदा उठा गई। अफसोस का बात है, हमारा खून बेकार गई। चौकरी तो फिर भी चला गया। छोटा खान निशाने पर थी, वरना हम समझ लेती। अभी हम बूढ़ा है, पर ऐसा भी नहीं। चौकीदार अपनी साख बहाल करने की कोशिश में बोले चला जा रहा था। मगर जब बड़े खान गन उठाए हुए थे तो लड़की कैसे चली गई लाला? आरिफ ने नुक्ता उठाया। बस वो अंदर से भागता हुआ आया और जीप में बैठ गया। चौकीदार ने बड़े मासूम अंदाज में बताया। खुद ही? आरिफ की हैरत बढ़ रही थी। खुद ही, हम देखता रह गया बस। चौकीदार ने आंखें झपका कर कहा। खान ने पीछा नहीं किया? आरिफ ने उलझकर सवाल किया। बड़ा तेज़ी में मामला हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया, चौकीदार ने सादगी से जवाब दिया। आरिफ चंद सानिये गुमसुम सा खड़ा कुछ सोचता रहा। उसी दम रूपा देवी अपने मखसूस घाघरे में मलबूस, सर पर टोकरी, बगल में बच्चा दबाए फाटक से अंदर दाखिल हुई। रूपा देवी, अंदर खाला 16 आने होंगी, उन्हें कहो आरिफ आया है। आरिफ ने बड़ी बेताबी सी कैफियत में पैगाम दिया था। चंद मिनटों बाद सफ़ेद चादर में ढकी छुपी खाला बाहर आती दिखाई दी। उनकी चाल से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत निढाल हैं। हाँ बेटे, कहो क्या बात है? वो करीब आकर थके थके अंदाज में बोली। मैंने सुना है कल। ठीक सुना है बच्चे, लौंडिया के नसीब फूट गए। कहावत है, मावत ठंडियाँ छानवा। एक उस हराफा जैसी माँ होती है, बेगैरत, बेज़मीर। वो रोने लगी। अरे, मैं तो तेरी माँ की खैरियत पूछने गई थी। दुखिया से बातें करने में देर हो गई और इधर ये सब हो गया। वो अब फूट फूट कर रोने लगी। उसका कोई अता पता निशानी बताएं, कुछ करता हूँ, वो बेहद संजीदगी से कह रहा था। मैं सदके। खाला ने बेख्तियार उसके सर पर हाथ रखा। पुराने वक्तों की तरह कोठे थोड़ा ही सजाती है, नए फैशन से धंधा करती है, बड़े बड़े सरकारी अफसरों से ताल्लुक़ है। तू उसके आगे कल का बच्चा। अल्लाह तेरी माँ का कलेजा ठंडा रखे। उन्हें आरिफ पर ढेरों प्यार आ गया। यूँ भी अजीम दुख के दौरानिए में अमलन दुख बांटने वाला यूँ महसूस होता है जैसे कि अंधेरे में सितारे। लेकिन खाला, इस तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना तो उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। वो बहुत फ़िक्रमंदी से कह रहा था। आप मुझे उसकी नानी का पता दें, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगी। वो फिर गोया हुआ। हाय, उसके पास चले भी ना जाना, गरीब सुनते ही दम दे देगी। उसकी तो सारी मेहनत ही ठिकाने लग गई। खाला ने पेशानी पर हाथ मारा। ये तो पता होगा, उसकी माँ सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, चारों सूबों में किस में रहती है। उसकी सोच में खाला की बातों से कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। खाला ने शफ़क़त से उसके शाने पर हाथ रखा। पहले क्यों न कुछ फूटा, तेरे साथ ही ब्याह देती, फिर तो वो हरामखोर सारी ज़िंदगी कुछ न कर सकती थी। ऐसा शरीफ, पढ़ने लिखने का शौकीन, शक्ल सूरत में भली। आरिफ होठ काटता हुआ वापस पलट गया। हालांकि आंखों से एक तवातर से आंसू बहने लगे। अम्मा जी, आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया? तज़मीन ने शिकायती आमेज़ अंदाज में कहा था। अरे मैंने कहा रात गई बात गई, क्या किसी के दुखों से मज़े लेना ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती। 16 आने तू हम न कर, तेरे बड़े खान से कहा है मैंने कि कुछ करें। वो इंशाल्लाह कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। अम्मा जी ने सब्ज़ी बनाती हुई खाला को लबस्ता बैठे देखकर कहा। हाँ अम्मा जी, खेल तो पूरा हो गया। अब तो ये ख़ुद को धोखा देने वाली बात है। उसके नसीब की ख़राबी, हमारा आपका क्या दखल? खाला ने कतन मायूसी का इजहार करते हुए अपना काम जारी रखा। ना, मायूस नहीं होते। अल्लाह के पास हर मुश्किल का हल है। मुश्किल तो इंसानों के लिए होती है। बस दुआ कर, अल्लाह बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अम्मा जी की फितरत में मायूसी का अंसर कभी नहीं आया था। एक औरत ही तो है खाला, क्या कर सकती है। ठीक है, उसने अपना सारा जोर दिखाया। अब जब बाबा साहब कुछ करेंगे तो जाहिर है कुछ अच्छा ही बंदोबस्त करेंगे। तज़नीन ने भी उन्हें मायूसी से निकालने की कोशिश की। वो औरत बहुत पहुंच रखती है, बड़े बड़े लोगों से सलामी लेती है। अपने चबूतरे पर वो तल्खी से मुस्कराई। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो 16 आने, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह से बड़ा तो नहीं हो सकता। अगर वो किसी की मदद करे तो कोई रोक सकेगा उसे? बुरी बात, अल्लाह पर भरोसा रख। तूने भी रात को खाना नहीं खाया, कुछ खा पी ले। अम्मा जी का दिल उनकी हालत पर पिघले चला जा रहा था। भूख ही नहीं लग रही, न नींद आ रही है, जैसे सख्ता सा हो गया है। मेरा तो मुंह ही नहीं अब कि उसकी नानी को बता सकूं कि तेरा आबदार मोती। उनकी आवाज़ हलक में फंस गई। आपा, वो मेरा ब्लू सूटकेस है ना, उसका लॉक ख़राब है। कोई अच्छा सा सूटकेस हो घर में तो निकलवा दे प्लीज़।
तैमूर अली खान दालान में दाखिल होकर तज़नीन से मुखातिब हुए। अभी तो 4-5 रोज़ है तुम्हारी रवानगी में, इतनी जल्दी पैकिंग शुरू कर दी? तज़नीन ने ताज्जुब से उनकी जानिब देखा। इस दौरान जो कुछ याद आता रहेगा वो रखता रहूँगा, किसी चीज़ के मिसप्लेस होने का ख़तरा तो नहीं रहेगा, फिर बाद में बहुत कोफ्त होती है। तुम्हारे बाबा साहब के कमरे में 2-3 सूटकेस हैं, बहुत खूबसूरत है और बड़े बड़े हैं, उनमें से कोई ले लो। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? तैमूर अली खान फुल शूटिंग किए हुए थे, इसलिए अम्मा जी ने पूछा। एक दोस्त के यहाँ, बहुत ज़रूरी मिलना है। उन्होंने सरसरी निगाह खाला पर डालकर जवाब दिया। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं तुम्हारे जाने में, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास बैठा करो। मौत ज़िंदगी का क्या भरोसा, जाने फिर माँ की शक्ल देख भी सकोगे नहीं। अम्मा जी ऐसी बातें नहीं करते, जहाँ हम पढ़ते हैं ना, वहाँ दुनिया के कोने कोने से लड़के आए हुए हैं पढ़ने के लिए, और उन सब की माएँ जो इस खुशी में जुदाई बर्दाश्त करती हैं कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। हम तो मर्द हैं अम्मा जी, वहाँ तो दूसरे मुल्कों से लड़कियाँ आई हुई हैं पढ़ने के लिए। वहाँ 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं लड़कियों में, हमारी क्लास फेलोज़ हैं। तैमूर ने तज़नीन की तरफ देखकर झट वजाहत भी कर डाली। एक तो मशहूर इंडियन एक्ट्रेस की बेटी है, दूसरी इटालियन है, नस्लन इंग्लिश है, मगर पैदा इटली में हुई थी। इटली के किसी दूर रफ्ता गाँव में रहती है उसकी माँ। देखिए अम्मा जी, वो भी तो माँ है ना, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है लड़कियों को सहेलियाँ बनाने की? लड़के पूरे नहीं पढ़ते। अम्मा जी को ये लड़कियों के साथ दोस्ती की बात बिल्कुल ना भाई। अम्मा जी, दोस्त सहेलियाँ तो बस खुद ब खुद बन जाती हैं। अच्छा हम चलते हैं, देर हो जाएगी। वो बैंड की जेबों में हाथ डालकर माँ के पहलू से उठ खड़े हुए। बेटे, वो अपने बाबा साहब पर दबाव बढ़ाओ। देखो खाला का क्या हाल हो गया, ना खाती हैं, ना पीती हैं, ना सोती हैं। अम्मा जी को पता था बाबा साहब तैमूर की बहुत सुनते हैं। तैमूर अली खान ने बाएं अब्रू चढ़ाकर की नकियों से खाला की सिम देखा। क्या हम भी आपसे वही जुमला कहें जो सब कह रहे हैं कि फ़िक्र न करें? देखिए वो इसी हवेली में काम करती थी ना, सब उससे बहुत खुश थे। उसकी खिदमत के सिले में उसका हक बनता है ना कि उसके लिए कुछ किया जाए। तैमूर अली खान के अंदाज़ में उनका आबाई वक़ार झलक रहा था। खाला ने छुरी रखी और तेज़ी से उठकर तैमूर अली खान के हाथ थामकर चूम लिए। उनकी आंखों से चंद कतरे भी तैमूर अली खान के हाथों पर टपक गए थे। सबने खाला को तसल्ली दी थी, मगर ऐसा मजबूत दिलासा कहीं से नहीं आया था। इतनी खुशियाँ दे रब्बुल आलमीन आपको कि आपसे समीटी न जाए। आमीन, अम्मा जी ने बेसाख्ता कहा। कितनी दुआएं देती हैं तू 16 आने मेरे बच्चों को, तूने तो ख़रीद लिया है मुझे। अम्मा जी निहाल नज़र आई। हाय नहीं अम्मा जी, आपके पैर की जूती हूँ। खाला ने आंखें पोंछी। तैमूर अली खान सदर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा, तैमूर और बाबा साहब के अलावा और कोई नहीं था घर में? यावर अली खान सफ़र की थकान उतार कर सोकर फारिग हुए तो नाज़नीन ने उन्हें मुताला किया। वो एकदम खासे परेशान नज़र आने लगे। लेकिन वो लोग चौकीदार, बाबा साहब और तैमूर के होते हुए अंदर कैसे आ गए? सिर्फ सदर दरवाजे की तरफ 3 गन्स बंदूकें लटकी हुई होती हैं और हर गुज़रने वाले ने पहले वहीं से गुज़रना होता है। उस पर गेट पर मौजूद गनमैन, जितनी देर वो गनमैन से उलझे होंगे इतनी देर अंदर मौजूद लोगों के लिए काफ़ी थी। जबकि तैमूर और बाबा साहब तो बेहतरीन हंटर हैं। यावर अली खान को इस नुक्ते पर सख्त उलझन हो रही थी। चौकीदार बेचारा तो जल्दी ज़ख्मी हो गया था, नाज़नीन ने तासिफ से कहा। तो क्या वो बाबा जान और तैमूर को काबू पाकर अंदर घुस गए थे? यावर अली खान दर हकीकत बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे। वो अंदर नहीं आए, मोहतरबा खुद भागकर उनके जीप में बैठ गई, नाज़नीन ने कहा। यार, यावर अली खान ने बेबसी से नाज़नीन की तरफ यूं देखा गोया उसकी जहनी सेहत पर शुबा हो। पूरी बात तो सुने। ये अपनी शैतान गुल्लो की बच्ची उस तरफ आ निकली थी। उसने शोर कर दिया। बस इतनी सी मोहलत से फ़ायदा उठाकर उन्होंने तैमूर पर काबू पा लिया। बाबा साहब भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो लोग तैमूर को अगवा करके ले जा रहे थे। बस शायद इस वजह से मुतरबा खुद ही बाहर आ गई। बहुत ही नमक हलाल निकली। उसने सोचा होगा क्यों अपनी वजह से मालिकों को नुकसान पहुंचाए। ऐसी बुज़दिल दिखाई देती थी, मगर हैरान कर गई। नाज़नीन ने चाय तैयार करके यावर अली खान के सामने रखी। वो जज्बा बहुत ही ताकतवर होता होगा जो दूसरों या किसी की खातिर जान की बाजी लगाने पर आमादा करता है। आपका क्या ख्याल है? यावर अली खान ने बीवी की सिमताई तलब नज़रों से देखा। वो बेवकूफ़ ज़रूर है, मेरा ख्याल है, मगर इतनी भी नहीं। आपने इतनी बड़ी बात किस बुनियाद पर कह दी? नाज़नीन ने उलझ कर पूछा। इतनी डरपोक सी लड़की जो किसी कीमत पर भी माँ के पास जाने के लिए राज़ी नहीं थी। इधर उस पर कोई प्रेशर भी नहीं था
اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بیوقوف لوگوں سے ہی اس طرح کی احمقانہ و بے سروپا حرکتوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یاور علی خان سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر جیبوں میں لائٹر ٹٹولنے لگے۔ وہ تیمور کا بالکل مالکوں کی طرح احترام کرتی ہے، گھیگی تو بند جاتی ہے ان کے سامنے۔ نازنین نے ان کے خیال سے بالکل اتفاق نہیں کیا۔ چلے خیر، ہم اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اس نے ہمارے بھائی کو کسی مشکل میں پھنسنے سے بچا لیا۔ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح اس کی نمک حلالی کا انعام اسے دیں، جس مشکل میں ہے اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ فی الحال تو اس عورت کا اتا پتہ ٹھکانہ کسی کو اندازے کی حد تک بھی معلوم نہیں۔ بیچاری خالہ پر بڑا ترس آ رہا ہے، بہت بری حالت ہے ان کی۔ نازنین نے افسوس سے کہا۔ ظاہر ہے فطری عمل ہے، ان کے پاس وہ کسی کی امانت تھی۔ یاور علی خان نے سگریٹ سلگا کر فضا میں دھواں بکھیرا۔ تیمور کہاں ہے؟ انہوں نے جانے کس دھیان سے چونک کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، بڑی زبردست تیاری کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ اور چائے بنواؤں آپ کے لیے؟ نازنین نے ٹرالی اپنے قریب کرنے کی نیت سے ہاتھ بڑھائے۔ نہیں، کیا کسی کو بھی بتا کر نہیں گیا؟ یاور علی خان کی توجہ ایک جگہ مرکوز تھی۔ نہیں، شاید بابا صاحب کو علم ہو، نازنین نے جواب دیا۔ اچھا، ہم ابھی آتے ہیں، بابا صاحب کو سلام کر لیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نازنین نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر بہت الجھے ہوئے ہیں۔ تیمور علی خان سامان کی پیکنگ کے عمل سے تھک سے گئے تھے، اس لیے کمرے کی لائٹ بجھا کر دریچے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان 3-4 دنوں میں ایک لمحے کو بھی وہ مظلوم ان کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ سلیقے سے اوڑھنی سر پر جما کر نگاہیں جھکا کر بات کرنے والی اس کی دوشیزگی ہی تو اس کا ساسا تھی، اس کے الہڑ پن کی تو کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کے گھرانے میں عورتوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ بابا صاحب تو اس معاملے میں زیادہ گہرائی میں جاتے ہوئے کبھی نہ پائے گئے، لیکن ان کی والدہ صاحب اور اماں جی خواتین کی عزت و احترام کے متعلق اتنے حساس تھے کہ بچوں کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا دنیا میں اس سے زیادہ اہم بات ہی کوئی نہ ہو۔ ماں ان کی نظر چوکیدار پر پڑی، وہ گیٹ کی سمت جا رہا تھا۔ انہوں نے کلائی میں بندی گھڑی پر نظر ڈالی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ دلچسپی سے گیٹ کی طرف دیکھنے نکل گئے۔ گیٹ کھلتے ہی کوئی اندر داخل ہوا اور ایک دم فرش پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار بھی 2 زانو ہو کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نووارد اور چوکیدار میں کیا گفتگو ہو رہی تھی وہ فاصلے ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکتے تھے۔ بجلی کسی تیزی سے اپنے کمرے سے نکلے تھے اور چند جستوں میں زینا طے کیا تھا۔ کیا ہوا خان بابا، کون ہے یہ؟ چوکیدار اپنی کوٹری کی طرف جا رہا تھا۔ تیمور نے درمیان میں ہی جا لیا۔ زیتون بانو ہے، بڑا زخمی ہے، پانی لینے کے واسطے جاتا ہے چھوٹا خان۔ تیمور علی خان کو گویا زبردست شوق لگا تھا۔ ارے بھائی، کیا نام ہے وہ؟ اندر چلو جلدی سے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پانی؟ اس نے جیسے کسی کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ یہاں سے تو اٹھو، پانی بھی ملے گا، وہ جھلائے اور خود آگے بڑھ کر کھلا گیٹ بن گیا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پانی؟ میں مر رہی ہوں خان، پانی۔ اسی دم خان بابا بڑے سے گلاس میں پانی لے کر بھاگتا ہوا آ گیا اور جھک کر محتربہ کو گلاس تھمایا جو فوراً ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ مائی گڈنس، اٹھو! تیمور علی خان نے اس کا بازو تھام کر اٹھایا۔ بابا، پانی بیٹھک میں لے کر آؤ۔ وہ نزدیکی کمرے کی طرف بڑھے۔ محتربہ ان کے ساتھ جیسے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ وہیں دہلیز پر بے دم انداز میں بیٹھ گئی۔ چوکیدار بھی پانی لے کر پہنچ چکا تھا۔ خان بابا، خود پلاؤ اسے، تیمور علی خان نے کمرے کی لائٹس آن کرتے ہوئے کہا۔ چوکیدار نے تعمیل کی۔ اتنا بڑا گلاس محتربہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ تیمور لائٹس آن کر کے پلٹے تو بری طرح چونک پڑے۔ محتربہ کے ہونٹوں کے دونوں کناروں پر خون جم کر سیاہ لکیروں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے سارے چہرے پر پربرم محسوس ہو رہا تھا۔ چچا، ایک گلاس اور؟ وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ چوکیدار ایک دم تیزی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تیمور 2 زانو ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ وہ کیا نام ہے تمہارا؟ محتربہ، کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ بغیر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ خان، پنکھا تیز کر دیں، آگ لگ رہی ہے اندر۔ اس نے دوپٹہ اتار کر دور پھینکا۔ تیمور علی خان روبوٹ کے انداز میں اٹھے اور پنکھے کی سپیڈ بڑھا دی، پھر دوبارہ اس کی طرف چلے آئے۔ اسی دم چوکیدار بھی اندر داخل ہوا۔ محتربہ ہتھیلیاں کارپیٹ پر جمائے بے دم انداز میں جھکی ہوئی تھی۔ زیتون بانو، لو پانی پیو۔ اوہ چھوٹا خان، اس کا قمیص تو خون سے خراب ہے۔ چوکیدار گلاس اس کے منہ سے لگاتے ہوئے بدحواس ہو کر بولا۔ تیمور علی خان نے اس کی پشت کی طرف نگاہ کی تو واقعی سناٹے میں رہ گئے۔ او گاڈ!
उन्होंने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसकी नब्ज़ देखी, फिर एकदम उठ खड़े हुए। हम अभी आते हैं। उनके तेज़ तेज़ उठते कदम रईसा बेगम के कमरे की तरफ थे। उनकी दस्तक में खासा शोर था। कौन? उनके बहनोई की आवाज़ आई। हम हैं तैमूर, बीबी जान को भेजिए। थोड़े से तवक्कुफ़ के बाद दरवाज़ा खुला था। रईसा बेगम नींद भरी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। खैरियत? क्या बात है तैमूर? वो परेशान हो गई। हमारे साथ आइए। वो बस इतना कहकर पलट गए। रईसा बेगम हैरान परेशान उनके पीछे चल पड़ी। दोनों आगे पीछे चलते हुए बैठक में दाखिल हुए। मुतरबा निढाल अंदाज में कारपेट पर ढेर हो चुकी थी। हाय अल्लाह! रईसा बेगम सीने पर हाथ रखकर जहाँ थी वहीं थम गई। ये मुतरबा है तैमूर? वो बदहवास हो गई थी। जी बीबी जान, ये बहुत ज़ख्मी है, इसके कपड़े तब्दील कराइए, खून लगा हुआ है। हम फ़र्स्ट एड बॉक्स भिजवाते हैं और कोई टैबलेट वगैरह देखते हैं। वो रईसा बेगम को शशदर खड़ा छोड़कर बाहर गए। बीबी जान, इसको बहुत खून निकली है, कमज़ोरी हो गया है, चौकीदार ने दुख से कहा। मुतरबा, रईसा बेगम ने उसका रुखसार धीरे से छुआ। कितनी जल्दी सबके मुंह पर उसका नया नाम चढ़ गया था। मुतरबा, देखो मैं हूँ तुम्हारी बीबी जान। उनके लहजे में बला की मोहब्बत थी। मुतरबा ने ज़रा देर को आँख खोलकर उनकी सिम देखा। बीबी जान? उसकी आवाज़ आंसू में डूब गई। हाँ हाँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है, घबराओ नहीं, अभी दवा लगाते हैं, फ़ौरन आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह। हिम्मत करो, इस तरफ आ जाओ, हम कुशन रख देते हैं तुम्हारे सर के नीचे। आओ शाबाश। उन्होंने मुतरबा को उठने में मदद दी और उसे ऐन पंखे के नीचे लाकर लिटा दिया और सोफ़े से कुशन उठाकर उसके सर के नीचे रख दिया। बीबी जान, मैं मर रही हूँ। उसकी आवाज़ पर आंसू गालिब आ गए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। तुम्हारे कपड़े तो खाला की कोठरी में होंगे। ठहरो, हम अपना कोई जोड़ा लेकर आते हैं। वो बाहर निकलने लगी तो तैमूर आ गए। आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने हैरत से पूछा। कपड़े लेने जा रही हूँ, जगह जगह खून लगा हुआ है, वो कहती हुई बाहर निकल गई। खान बाबा, किसी बड़े से बर्तन में पानी लाओ, हल्का गर्म करके, बीवी जान इसके ज़ख़म साफ़ करेंगी। और हाँ, एक गिलास में पानी पहले दे जाओ, ये टैबलेट भी खाना है। मुतरबा ने आंखें मूंदे मूंदे तैमूर अली ख़ान की मेहरबान आवाज़ की तमाम रोशनी अपने अंदर उतार ली। ये वो तैमूर अली ख़ान तो हरगिज़ भी नहीं थे जिनके चेहरे पर बर्फ़ जमी रहती थी, जिनके हाफिज़े में उसका नाम महफूज नहीं हो पाता था। कितने पहाड़ जितने बुलंद नज़र आते थे। वो उसे लड़की कहते हुए चौकीदार पानी ले आया तो उन्होंने 2 टैबलेट्स अपनी हथेली पर रखकर उसके सामने की। लो, ये खा लो, दर्द कम हो जाएगा। वो कोहनियों के बल ऊंची हुई। बमुश्किल पहले उनकी हथेली से एक गोली उठाकर मुंह में रखी और पानी के चंद घोंट लिए, फिर दूसरी गोली उठाई। खान बाबा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, बीवी जान आ रही है, उनसे कहना किसी तरह कोशिश करके इसे अंदर पहुंचा दें। फाटक में ताला डालो। अब फाटक उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक हम इजाज़त ना दें। वो अपने मखसूस लबो लहजे में हुक्म देकर बाहर चले गए। सुबह को हॉल कमरे में एक भीड़ लगी हुई थी। मुख्तलिफ आवाज़ों से एक शोर सा महसूस हो रहा था। खाला गाहे गाहे उसे छूकर देख रही थी, जैसे उसे सामने देखकर यकीन ना आ रहा हो। बताओ, बच्ची का क्या हाल हो गया है? बेटी, क्या बहुत तकलीफ़ हो रही है? अम्मा जी उसकी हालत पर बहुत अजियत महसूस कर रही थी। ये इतने ज़ख़म तुझे कैसे आए? खाला बेकरारी से पूछ रही थी। बहुत मारा है उन्होंने, मुतरबा ने तकलीफ़ से कराते हुए कहा। आय हाय, सत्यानाश हो कम वक्तों का, क्या आशर किया है फूल सी बच्ची का। खाला आबदीदा होने लगी। ये चाय डबल रोटी खा ले। रात तो मैं इम्तिहान में पड़ गई थी अम्मा जी, कपड़े ज़ख्मों से चिपके हुए थे, रईसा बेगम ने बताया। तो ये तो बता, उन खूनियों से बचकर कैसे आ गई? बड़ी हिम्मत दिखाई तूने, अम्मा जी कह रही थी। कोठी में कोई फंक्शन था, वो चड़ाल उधर लगी हुई थी। उसके कुत्ते समझे मैं बेहोश पड़ी हूँ और इतनी ज़ख्मी हूँ कि मुझसे उठा भी नहीं जाएगा, और मुझसे वाकई उठा भी नहीं जा रहा था। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। हाँ, बस अल्लाह ही हिम्मत देता है, अम्मा जी ने बड़ी दिलसोजी से कहा। मगर उन्होंने तुझे मारा क्यों? तू क्या भागते हुए पकड़ी गई थी? तज़नीन भी गुमसुम हालत में बाहर आई। वो मुझे दुल्हन बना रही थी। मैंने कह दिया कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मैंने जेवर खिड़की से बाहर फेंक दिए थे और गरारा फाड़ दिया था। वो दूसरा ले आई और मुझे ज़बरदस्ती कपड़े पहनाने लगी। मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। हाज़रीन ने जैसे ही लफ्ज़ थूक सुना, अपने अपने सीनों में ठंडी सी पड़ती हुई महसूस की और उसके इस कारनामे पर उसे तहसीन भरी नज़रों से देखा। फिर नाज़नीन ने बेताबी से पूछा। फिर उसने 2 तमांचे लगाए मेरे मुंह पर। आह, मुतरबा कराई।
मैंने भी कह दिया कि इंशाल्लाह मुझे कफन पहना कर ही भेजोगी इस भैंसे के घर। हाय बीबी जान, ऐसा मोटा काला आधा गंजा, वो तो बहुत छुपा रही थी, लेकिन मैं भी बड़ी चालाक हूँ। आए हाय, तेरी चालाकी होशियारी के तो डंके पिट रहे हैं। खाला ने उसके बाजू पर मरहम लगाते हुए जलकर कहा। मैंने ये भी कह दिया कि इतना ही अच्छा है तो तुम खुद कर लो निकाह। क्यों अम्मा जी, सही नहीं है? सबके होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ हाँ, सही क्यों नहीं है? अम्मा जी ने शफकत से उसका दिल रखा। वो तो तेरे आइडिया पर बड़ी खुश हुई होगी। तस्नीम मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से कहा। कहाँ बीबी जान, 2 और लगा दिए। उफ, चल लानत भेज उस काले मोटे पर। मैंने तेरे लिए बर्ड ढूंढ लिया है, तेरे जोड़ का है, रंग भी गोरा है, अदब तमीज़ वाला भी बहुत है। खाला ने ट्यूब बंद करके एक तरफ रखते हुए लापरवाही से कहा। सभी एक लम्हे को बौछक्के रह गए। मुतरबा तो अपनी तकलीफ़ ही भूल गई और पट आंखों से खाला को देखने लगी। खाला क्या कर चुकी हो चुपके चुपके, हमसे भी छुपाती हो? तस्नीम ने शाकी अंदाज में कहा। ये तो बड़ी नई बात है, आपसे क्यों छुपाऊंगी? जो करूंगी आप सबकी इजाज़त से ही करूंगी। खाला ने रसानियत से जवाब दिया। किसका लड़का है? अम्मा जी भी खुशगवार हैरत से पूछ रही थी। बताऊंगी अम्मा जी, फ़िक्र न करें। मुतरबा निहायत उलझन में नज़र आने लगी और जैसे अपनी तकलीफ़ ही भूल गई थी। चलो खैर, अच्छा ये 16 आने कि जितनी जल्दी हो सके तेरा वज़न कम हो। अम्मा जी ने अपने फितरी खुलूस का इजहार किया। अब तू खुश हो जा, गोरे रंग वाले से तेरी शादी कर रही है खाला, रईसा बेगम ने हंसते हुए कहा। मुतरबा खामोश रही। वैसे एक बात है, साबित हो गया कि बहादुर तो तू बहुत है, बड़ा दिल गुर्दा है। तस्नीम ने एक निगाह उसके ज़ख्मों पर डाली। हमारी तमन्ना हमारी आका होती है बीवी जान। आका जितना ज़ोरदार हो, ग़ुलाम को उतना ही ताबेदार होना पड़ता है, वरना तो मैं बहुत कमज़ोर और डरपोक हूँ। उसने इतनी संजीदगी से कहा कि वो सब हक्का बक्का होकर उसकी शक्ल देखने लगी। तू तो ज़ख्मी होकर बड़ी गहरी बातें करने लगी है। नाज़नीन ने मुस्कुराते हुए गोया दाद दी। वो कौन सी तमन्ना है जिसकी तू बांदी बन गई है? तस्नीन को उसके जुमले पर अभी तक हैरत थी। मुतरबा खामोश रही, बल्कि आंखें मूंद ली। रईसा, अपने बाबा साहब से कह कि इसका कोई बंदोबस्त करें, वो बहुत ख़तरनाक औरत है। अम्मा जी बहुत देर से ये बात कहना चाह रही थी। तैमूर अली खान को 2 मिनट हुए थे उस तरफ आए हुए। वो उसका जुमला सुनकर मुतहिर से दरवाजे में अटक गए थे। हो गया है बंदोबस्त, उसे कराची भिजवा देते हैं, वहाँ भी तो मुलाजमों की ज़रूरत रहती है। ये बहुत मेहनती है, कोठी की देखभाल बहुत अच्छी तरह करेगी। अशरफ की माँ वहाँ पहले ही है, ये भी नहीं है कि वहाँ अकेली होगी, उसकी देखभाल कर लेगी। और ये कोठी की, और हम आपको ये बताने आए हैं कि हम सिराए जा रहे हैं, रात 1 बजे तक ही वापसी होगी, फ़िक्र मत कीजिएगा। हवेली पर पहरा है, इत्मीनान रखें। वो इतना कहकर वापस पलट गए। पहरा अल्लाह का है बेटे, तुम्हें भी अल्लाह के अमान में दिया। अम्मा जी ने दुआ दी। मैं अकेली रहूँगी कराची में? मुतरबा नहीफ आवाज़ में पूछ रही थी। और क्या बारात लेकर जाएगी? अशरफ और उसकी माँ गांव के हैं अपने, भली औरत है, खाला ने टोका। मेरा तो दिल नहीं लगेगा, वो कराहते हुए बोली। जान की खैर मना, जान के साथ दिल लगाने के सौदे, खाला ने डांटा। ये क्या कम है कि अल्लाह रास्ते निकाल रहा है, लगा लीजो दिल, वक्त पड़ा है। ये लड़कियां तो आती जाती रहती हैं, और अब तो छोटी दुल्हन भी बहुत जाती हैं, उनका तो मैके है वहाँ। अम्मा जी ने समझाया। तो क्या बसीर खाना की शादी मेरे पीछे हो जाएगी? हड्डी पसली एक हुई पड़ी है, मगर दिल है कि शादी ब्याह में अटका पड़ा है। खाला ने लताड़ा। लेकिन मैं कराची किसके साथ जाऊंगी? अब ये हमारा मसला है, तू क्यों हलकान हो रही है? रईसा बेगम ने डांट पिलाई। अम्मा जी, आप मुझे बहुत याद आएंगी। वो रोहान सी हो गई। थोड़े दिनों की बात है, तेरा ब्याह कर देंगे, कोई उम्र भर का थोड़ा ही भेज रहे हैं कराची, बेवकूफ़ कहेंगी। खाला ने दिलासा दिया। मैं नहीं करूँगी ब्याह, न गोरे से न काले से, वो बड़बड़ाई। सुन रही हैं अम्मा जी, इस हाल में भी कैसी पटर पटर ज़ुबान चल रही है। ब्याह नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? खाला नाराज़ हुई। दुनिया में ऐसे भी तो लोग होंगे जो ब्याह नहीं करते होंगे, दुनिया में एक ही तो काम नहीं है करने के लिए। हाय, उसने अपने बाजू दबाए। छोड़ 16 आनी, इस वक्त उसका जी अच्छा नहीं है, तो क्यों अपनी जान जला रही है? अम्मा ने लाहासिल बहस समेटी, मगर खाला जाने क्यों खटक रही थी। एक तो लड़कियां शर्म की वजह से शादी ब्याह से ला ताल्लुकी का इज़हार करती हैं, मगर इसका अंदाज़ कुछ और था। मगर वो अम्मा जी की वजह से चाहने के बावजूद भी कुछ बोली नहीं। चल मुतरबा, उठ जा,
खाला ने उसे आहिस्तगी से जगाया था। वो हड़बड़ा कर जाग गई। चारसू अंधेरा फैला हुआ था। वो खौफजदा सी हो गई थी। क्या टाइम हो रहा है खाला? सुबह के 4:30 बज रहे हैं। बीबी जान ने एक बैग दिया था, तेरे 4-5 जोड़े उसमें रख दिए हैं। ये ले 200 रुपये रख ले। खाला ने 200 रुपये उसके हाथ पर रखे। एक तो जहन अभी पूरी तरह जागा नहीं था, उस पर मतज़ाद हमले पे हमला। मगर क्यों? कपड़े बैग में क्यों रखे? और 200 रुपये का मैं क्या करूँगी? बेटी, तुझे तैमूर खान हवाई जहाज़ से कराची ले जा रहे हैं, खाला ने कहा। हाय, सारी नींद उड़नचू हो गई। एक अजीब से एहसास ने उसकी रगों पे में लताफतें भर दी। ये 200 रुपये भी उसी बैग में रख दो खाला, मेरे पास तो कोई पर्स या बटुआ नहीं है, उसने चारपाई से उतरते हुए कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। मुंह तो धुलवा दो खाला, मेरे इस हाथ से कोई काम नहीं हो रहा, उसने बेबसी से कहा। खाला ने तड़प कर उसे थाम लिया और गुसल खाने की तरफ ले चली। खाला ने ही मुंह धुलवाया, फिर खुद ही साफ़ किया। कपड़े तो तेरे ठीक है, अब दवाइयों की भूख का तो कोई इलाज नहीं। ये मैंने सफ़ेद चिकन की चादर तेरे लिए निकाली है, इसे अच्छी तरह लपेट ले। मैं ये पैसे बैग में रख दूँ? खाला उस वक्त मशीन किसी तेज़ी से काम कर रही थी। उसने चादर संभाल कर स्ट्रैप वाली फ्लैट स्याह चप्पल पाँव में डाली। खाला का बाजू थाम कर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई थी। सब तो सो रहे होंगे, अम्मा जी से तो मिल लेती। उसने मिन्नत से खाला की सिम देखा। कोई बात नहीं, चंद दिनों की तो बात है, क्यों बेआराम करती हो? बीबी जान जाग रही हैं तेरी वजह से। वो उसे लिए हुए पोर्च में आई। बीबी जान ड्राइवर के साथ खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। अगर बैठना मुश्किल हो तो पीछे लेट जाओ, रईसा बेगम ने उसे कहा। ड्राइवर ने जीप का दरवाज़ा खोला। खाला ने सहारा देकर उसे बिठाया। देखो, घबराना नहीं, वो भी हमारा अपना घर है, रईसा बेगम ने उसे तसल्ली दी। अशरफ की माँ बहुत अच्छी औरत है, बहुत ख्याल रखेगी तुम्हारा। बीबी जान, अल्लाह आपको आल औलाद की खुशियाँ दिखाए। कितने भले लोग हैं आप। एक बेकस की बच्ची के लिए जो आप लोगों ने तकलीफ़ उठाई है, अल्लाह ही उसका अजर देगा। खाला का दिल भरा गया, कुछ जज्बा सा पास से और कुछ उसकी जुदाई के ख्याल से। खाला रो नहीं, वरना मैं सारे रास्ते रोती जाऊंगी। मोहतरमा को खुद भी रोना आ रहा था। आ गई वो। उसी दम तैमूर अली खान सिया कोट पैंट में उनके करीब आ गए। हाँ, बैठ गई, रईसा बेगम ने जवाब दिया। मेरा बैग रख दिया है? वो बहन से पूछ रहे थे। रख दिया है, अब बस बैठ जाओ, वक्त बहुत तंग है। वो पीछे मतवज्जा हुए बगैर बहुत आरामदा अंदाज में अगली सीट पर बैठ चुके थे। बाकी आइंदा शुमारे में। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आगे के एपिसोड के साथ कल। और मोहतरमा तो भैया बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है, वो तो निकल आई है अपनी माँ के चंगुल से। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसने तैमूर अली ख़ान के पीछे ही कोई गड़बड़ की है, तभी वो कैद में बंद है। या हो सकता है कोई गलत फहमी भी हुई हो। तैमूर अली ख़ान का मुझे समझ नहीं आता है। कभी लगता है कि वो मोहतरमा को पसंद करते हैं, कभी लगता है नहीं, बस अट्रैक्टिव है थोड़ी, तो इस वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। या फिर कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं नहीं होते हैं, क्या होता है नहीं मालूम। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, टाटा बाय।